Hello student of class 10th, again we are here with a new video and the topic is electric motor, and the chapter what we are covering is magnetic effect of electric current. So before starting this topic electric motor, in the previous video I also discussed about the force acting on the charged particle. So continuing that, if the charged particle is in the magnetic field it experiences force. ये हम जान चुके हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स काम करेगा. And what is the direction of that force? It can be find with the help of left hand rule, that is called Fleming's left hand rule. This also we had discussed in the previous video. But before starting this topic motor, because we will use that rule in this also, so I just want to revise you again the Fleming's left hand rule. So let us see what is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule, if you see in the figure, if you stretch your left hand in such a way that your thumb, forefinger or first finger and the second finger, they all are perpendicular to each other, सब एक दूसरे के perpendicular हो, आप इसको ऐसे stretch कर लें. तो if the first finger will in the direction of magnetic field, the second finger will in the direction of current, तो हमारा जो thumb होगा वो हमारा force की दिशा को दिखा रहा होगा. Means if the thumb, first finger and second finger is stretched in such a way that all the three are perpendicular, then the first finger is directed towards the magnetic field, second finger directed towards the direction of current, then the thumb point towards the direction of magnetic force acting on the charged particle or acting on the current carrying wire. So this rule we are going to apply in this section, electric motor. So let us start. What is electric motor? What is the principle of electric motor? How it works and what are the uses of electric motor? You all are aware about that. We are using so many things in which the motors are used. So now electric motor is a rotating device which rotates or move around and round. Everyone has seen the motor in mixer grinder, in washing machine. So what does motor do? Motor converts electrical energy into mechanical energy, and they are used in electric fans, refrigerator, washing machine, mixer, etc. And this is the design of a motor what we are using in our homes. It is commercial motor. एक बड़ा मोटर है, छोटे मोटर भी यूज़ होते हैं. जैसे सीडी प्लेयर की ट्रे में सीडी घूमती है उसके नीचे मोटर लगा होता है. हमारे मिक्सर ग्राइंडर में मोटर लगा होता है जिसमें हम अपना जार रखते हैं तो उसमें वो ग्राइंड करता है या उसको डिफरेंट हम पर्पस का यूज़ करते हैं. फैंस में जो मोटर लगा होता है उससे हमारे पंखे के ब्लेड जो हैं वो घूमते हैं. देयर आर एवरीवेयर यू सी वेयर द थिंग इज़ रोटेटिंग और मूविंग in a way that is used by motor. So motor is a very important device which is invented and it make our life easy. So this is a design of a motor. If you this is the shaft, एक यहाँ पे देखो रॉड निकली हुई है बाहर की तरफ, इसको शाफ्ट बोलते हैं. और इस शाफ्ट में अगर हम फैन बांध दें या कुछ भी ऐसी चीज़ लगा दें तो वो भी घूमता है बहुत तेज़ी से. तो मोटर कैन बी यूज इन डिफरेंट पर्पस. So what is the construction of motor? How can motor form? And what is the principle of motor? We will learn in this. So principle of electric motor. Electric motor works on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it. जब भी हम कोई coil जिसमें करंट पास कर रही हो उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है. So when a rectangular coil is placed in a magnetic field, a current is passed through it and a force acts on the coil which rotates it continuously. So what is the principle? Principle ये है कि अगर हम किसी current carrying wire को magnetic field में रखते हैं तो उस पर एक force काम करता है. In the previous video, I discussed that when a charged particle is in the magnetic field, it experiences force. So the wire is made up of charges. So when the wire is flowing current, means there is a electric current and the magnetic field also it is outside. So जब भी किसी तार में करंट फ्लो कर रही है यानी कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो जैसे चार्ज पर एक फोर्स लगता है
तो तार में बहुत सारे चार्जेस हैं, उन चार्जेस से फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो तार है उस पर भी एक फोर्स काम करता है, और तार हमारा रोटेट कर सकता है, उठ सकता है, कुछ भी हो सकता है उस फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं मोटर के लिए वो यही है कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉयल और व्हेन अ current carrying wire is placed in a magnetic field, a force act on the coil which rotate it continuously. This is the principle of motor. Principle का मतलब है कि हमारा जो मोटर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो क्या प्रिंसिपल हुआ? प्रिंसिपल ये हुआ कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स की वजह से हमारा मोटर घूमता है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। नेक्स्ट इज, this is a systematic diagram of electric motor. This is a not as look as we had seen the motor, just this is to understand you what is the construction of electric motor. You see that two red north and south poles are here, that is the magnet, means we are creating magnetic field. We can take two pieces of magnet, one north and one south, we keep like this, otherwise we can use horseshoe magnet. So north and south poles of a magnet, the field will be from north to south, field हमारी north से south की तरफ होगी, and there is a coil ABCD, and if you see the coil which is connected at point X and point Y, these are the brushes, carbon brushes, and you see this is the axle, and you see one ring is there, that is called split ring, P and Q. split इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बीच में से टूटी हुई, बीच में से यहाँ पर इसमें split है, डिवीजन है, यहाँ पर टूटी हुई है, मीन्स इसको ऐसे बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। दिस इज़ नॉट कनेक्टेड एज अ होल ऑन द एक्सेल, एंड दिस इज़ अ रॉड विच इज़ कॉल्ड एक्सेल। इसी एक्सेल पर हम कुछ भी लगा दें, फैन लगा दें, मिक्सर ग्राइंडर का कुछ भी लगा दें, कोई भी पार्ट यहाँ रख दें तो वो घूमता है। दिस इज़ द एक्सेल, एंड दिस ब्रशेज आर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ बैटरी विद अ की। व्हेन द की इज़ ऑन, जब हम की को ऑन करते हैं तो बैटरी की वजह से इस तार में करंट फ्लो करती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ यू सी इन दिस डायग्राम फ्रॉम ABCD, करंट का जो एरो है वो A से होते हुए B से C से D से होते हुए वापस Y की तरफ आ रहा है। दिस इज़ अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, हाउ द मोटर वर्क्स, दैट विल we learn in the next segment. So first we know about what is the electric motor consist of. पहला पार्ट है हमारा रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD, सेकेंड हमारा है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट जो है वो हॉर्सशू के शेप का होता है, या हम दो अलग अलग मैग्नेट ले सकते हैं, और अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं तो इफ़ वी आर टेकिंग टू मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल ऑफ फर्स्ट मैग्नेट फेसेस साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के सामने रखना चाहिए, और अ कॉयल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेट, और जो कॉयल है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं। दिस इज द कंस्ट्रक्शन, एंड द एंड ऑफ द कॉयल, जो कॉयल के हमारे सिरे थे, हमने यहाँ पे आपको दिखा था डायग्राम में, जो कॉयल का लास्ट एंड है वो स्प्लिटिंग PQ से कनेक्ट होता है। और स्प्लिट रिंग का काम क्या है? स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर मीन्स विच रिवर्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ये करंट की दिशा को बदल देगा सर्किट में। एंड द इनर साइड ऑफ द स्प्लिट रिंग इज इंसुलेटेड एंड अटैच द एक्सेल। जो स्प्लिट रिंग है वो कैसी होती है, इसको अगर मैं ऐसे समझें कि जैसे हम लोग अपने हाथ में कड़ा या कोई ऐसी चीज़ पहनते हैं जो हमारे हाथ को कवर करता है, हमारे हाथ उसमें उसके अराउंड घूम सकते हैं, या वो कड़ा हमारे हाथ के चारों तरफ घूम सकता है, इतना वो उस पर मतलब उस पर इसको फिक्स नहीं करते हैं, उसको एक्सेल को उसमें घूमने के लिए जगह थोड़ी छोड़ दी जाती है, और वो उसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। द इनर साइड ऑफ स्प्लिट रिंग का जो अंदर का सिरा होता है वो इंसुलेटेड होता है एंड अटैच टू द एक्सेल, एंड इट इज़ फ्री टू रोटेट, ये घूम सकता है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ स्प्लिट रिंग टच टू स्टेशनरी ब्रशेज X एंड Y, और जो ब्रशेज हमारे हैं वो X एंड Y, नाम यहाँ पे दिया गया ब्रशेज क्योंकि ये फिक्स नहीं होते हैं, ये उसको दूर से टच करते हैं। जब वो उसमें स्प्लिट रिंग रोटेट करती है एक्सेल के साथ, तो ये इसको टच करके करंट प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको फिक्स कर देंगे तो ये तार को ऐड करके तोड़ देगा, मीन्स द वायर विल बी ट्विस्टेड एंड इट विल बी ब्रेक।
सो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ब्रशेज़। सो कितने पार्ट हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर में? पहला पार्ट हमारा हो गया, 2 मैग्नेट हमने लिए, एक हमने कॉइल लिया, एक हमने स्प्लिट रिंग लिया, फिर हमने ब्रश लिया और हमने यहाँ पर बैटरी और की का इस्तेमाल भी किया है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ व्हाट द ब्रशेज डू? ब्रशेज आर अटैच टू द बैटरी टू कंप्लीट द सर्किट। ब्रश केवल अटैच रहते हैं बैटरी के साथ, जिससे तार से वो लगातार अपना करंट को प्रोवाइड करता रहता है, एंड दे आर अटैच्ड ओनली, दे आर नॉट फिक्स्ड टू द वायर। नाउ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर? हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स? When the battery is switched on, current flows through coil AB from A to B। जैसे हम करंट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं बैटरी के, तो करंट जो है वो कॉइल AB में A से B की तरफ फ्लो करती है। While understanding this video, you can put your NCERT book in front of you. In that, the electric motor diagram is also there. So with the help of that diagram, you can understand what I am telling here. So the current flows from A to B। जब हम बैटरी ऑन करते हैं, करंट हमारा तार में फ्लो करता है ए से बी की तरफ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए से बी की तरफ फ्लो करता है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। सो वी विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द फोर्स। फोर्स की दिशा को पता करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इससे ही पता करने पर हम ये पाएंगे कि द फोर्स इन दैट वायर इज़ इन विच डायरेक्शन? इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए बी में जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कब लगेगा? जब करंट फ्लो करेगी ए से बी की तरफ। वी कैन यूज़ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हाउ कैन यू अप्लाई दिस रूल? लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन। दिस इज द डायग्राम ऑफ मोटर, दिस इज द मोटर। नाउ इफ यू पुट योर लेफ्ट हैंड फर्स्ट फिंगर मीन्स the forefinger. If you put from north to south, indicating north to south, and you put the middle finger towards the direction of current, means in the direction from A to B. First finger means forefinger you put in from north to south, second finger you put from A to B, and when you do this, you will see that your hand will rotate and the thumb go downward। अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो जिस तरफ अंगूठा हमारा जा रहा है, that is the direction of force on the wire. So the force on the wire AB will be downward। और जब हमारी करंट आएगी C से D की तरफ, इसी कॉइल में C से D की तरफ आएगी। नाउ अगेन यू पुट योर फिंगर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, करंट विल फ्लो फ्रॉम C to D। आपका जो मिडिल फिंगर होगा दैट विल डायरेक्टेड फ्रॉम C to D। नाउ इन दिस केस यू सी योर थंब विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन द केस ऑफ करंट फ्लोइंग फ्रॉम A to B, the thumb is downward direction, and the current flowing from C to D, the thumb is in upward direction। So when the force in the arm AB is downward and the force on arm CD is upward, so they will make a couple and they try to rotate the coil, making AB downward and CD upward। Now this is the way that how this coil rotate, and due to this the axle also start to rotate। Now I think everyone can understand how to apply the Fleming's rule to find the force। If you not able to find how to use the Fleming rule, so again I am telling you, you put your first finger of left hand towards north to south, means in the direction of magnetic field, your middle finger in the direction of current। In the case of AB, you put your middle finger towards AB and the thumb will be upward। Similarly you can apply in the arm CD also। एंड इन द आर्म BC में जो करंट फ्लो कर रही है, इन द आर्म BC द करंट इज फ्लोइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और तार में करंट कहाँ फ्लो कर रही है? वो भी B से C की तरफ फ्लो कर रही है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फ्लो करता है तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। मीन्स देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म BC पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। फोर्स किस पर काम कर रहा है? A से B पर काम कर रहा है और C से D पर काम कर रहा है। A से B में नीचे की तरफ काम कर रहा है, C से D में ऊपर की तरफ काम कर रहा है, और हमारा कॉइल इस तरीके से घूमना शुरू हो जाता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ here we are here। So by Fleming left hand rule, downward force applied on AB पर फोर्स नीचे की तरफ लगता है, एंड सिमिलरली अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन CD। जैसे हमने भी डिस्कस किया, अपवर्ड फोर्स CD पे लगने लगेगा, एंड दस द कॉइल रोटेट विद द AB मूविंग डाउन एंड CD मूविंग अप।
तो हमारा कॉयल जो है वो AB नीचे की तरफ जाएगा और CD ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ कॉयल AB एंड CD इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब AB और CD की पोजीशन बदल गई। पहले AB हमारा इस तरफ था, मीन्स लेफ्ट की तरफ था, और CD राइट की तरफ था। अब CD आ जाएगा राइट की तरफ और AB चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। मीन्स पोजीशन ऑफ AB चेंज होने की वजह से उसमें करंट फ्लो करेगी। पहले करंट फ्लो कर रही थी हमारी C से D एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ। नाउ CD विल रिसीव एंड अपवर्ड फोर्स। अब CD पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि CD अब राइट हैंड की तरफ आ चुका है, और AB पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। सो आर कॉयल वुड हाफ रोटेशन। तो हमारा कॉयल जो है वो हाफ रोटेशन में आ गया। लेकिन हमको अपने कॉयल को पूरा रोटेट करना है, बट वी डोंट वांट हाफ रोटेशन, वी वांट द फुल रोटेशन ऑफ द कॉयल। दैट्स वाई व्हाट टू डू, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉयल व्हेन इट हैज़ डन हाफ रोटेशन। जब वो कॉयल अपनी हाफ रोटेशन को पूरा कर चुका होगा उस समय करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट वी यूज़ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट रिंग। जो स्प्लिट रिंग हमने लगाई हुई है उसको हम कम्यूटेटर बोल रहे हैं। उसमें जो बीच में गैप है उसकी वजह से उसको हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं, और जो ब्रशेस उससे अटैच कर रखे हैं उसकी वजह से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। नाउ एज द कॉयल रोटेट्स द रिंग स्पिन्स with it, and when the coil become parallel to magnetic field the brushes X and Y touch the gap between the ring and circuit break। जब हमारा कॉयल बिल्कुल फील्ड के पैरेलल आ जाता है तो हमारा जो रिंग है वो घूमते घूमते मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। तो उस समय क्या हुआ, ब्रश एक्स एंड वाई जो है वो गैप उसके सामने आ जाता है, एंड द सर्किट ब्रेक हो जाता है। बट करंट की तो अब फ्लो नहीं करेगी क्योंकि सर्किट ब्रेक हो चुका है, लेकिन इनर्शिया की वजह से द रिंग कीप्स मूविंग। So the opposite end of the ring is now connected to positive end of the wire, and split ring is again connected to the coil CD, and part Q is connected to coil AB, which reverses the direction of current in the circuit। अब जिस डायरेक्शन में करंट पहले A से B में जा रही थी अब वही डायरेक्शन C से D के लिए हो जाएगी और वहाँ पर B से A के लिए हो जाएगी। मीन्स करंट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। नाउ द कॉयल CD इज़ ऑन लेफ्ट साइड एंड AB ऑन राइट साइड। अब कॉयल हमारी जो CD है वो लेफ्ट साइड में हो चुका है और AB हमारा राइट साइड में हो चुका है। तो करंट इन CD बिकम रिवर्स, दैट इज फ्रॉम D टू C। सो फोर्स ऑन CD विल बी डाउनवर्ड एंड द फोर्स ऑन AB इज अपवर्ड। पहले फोर्स AB पे कहाँ था, नीचे की तरफ। CD में कहाँ था, ऊपर की तरफ। अब फोर्स CD में कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और AB में कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। और इस तरीके से हमारा जो कॉयल है वो रोटेट करने लगता है। दस द कॉयल कीप ऑन रोटेटिंग। दिस इज द वे हाउ द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स। द रिवर्सिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैपन्स एवरी हाफ रोटेशन। हर आधे चक्कर के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एंड द कॉयल कंटिन्यू टू रोटेट अंटिल द बैटरी स्विच ऑफ। जब तक हम बैटरी को बंद नहीं करेंगे हमारा कॉयल जो है लगातार चलता रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ द स्प्लिट रिंग वॉज नॉट यूज, अगर हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल नहीं करते, कॉयल वुड हैव रोटेटेड हाफ इन क्लॉकवाइज। कॉयल हमारे आधे चक्कर में क्लॉकवाइज घूमता, एंड इन हाफ इट मूव एंटी क्लॉकवाइज। Hence the purpose of split ring only to reverse flow of current and make the coil rotate in single direction। तो split ring का काम क्या है, split ring का काम है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना और कॉयल को पूरा एक ही डायरेक्शन में घुमाना। दिस इज द यूज ऑफ split ring commutator। सो it is very important question कि what is the use of commutator or what is the use of split ring। So again, if split ring was not used, coil would have rotated half in clockwise direction and half in anti-clockwise direction। Hence the purpose of split ring is to reverse flow of current and make coil in a single direction। This is the use of the split ring। But we are using heavy motors also। We use motor to pull out the water from the ground, we use motor to lift anything, so many purpose we are using, heavy motors we are using। आप देखोगे मोटर बहुत भारी भारी होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, they are called commercial motors। तो how they increase the force and power in that motor? The force and power in that commercial motor we can increase by using electromagnet in the place of permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का।
जो नंबर ऑफ टर्न है कॉइल की वो बहुत ज़्यादा की जा सकती हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कंडक्टिंग वायर, जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतने उसमें करंट फ्लो करेगी, उसमें उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। सो द एंड सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज बाउंड। ये चीज़ करके हम किसी भी मोटर के पावर को या उसके फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। Now what is soft iron? The soft iron core on which the coil is wound along with the coil is called an armature. क्वेश्चन आता है what is an armature? तो जिस आयरन कोर पर हमने तार को लपेटा हुआ है वो पूरा सिस्टम आर्मेचर कहलाता है, और ये आर्मेचर मोटर की पावर को इंक्रीज करता है। जितना बड़ा जिसका आर्मेचर होगा उतनी जो पावरफुल वो मोटर होगी। तो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। Now you make your notes, revise it, see from your NCERT. The term what I had used in this electric motor, you have to read it on that. Suppose what is the principle of electric motor, what is the construction of electric motor, what are the main components of electric motor, what is armature, what is commutator, what is the use of brushes, what is the split ring, and what is the working of the electric motor. So many questions asked on this topic, so keep revising and make your notes. Thank you. Have a nice day.